हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Igneous rock. The igneous rock is a ball. Igneous is derived from the Latin word means igneous, mean of fire. There is the most important. The igneous rock here, the Latin word is igneous, mean of fire. Igneous rock here formed by there is a cooling of highly heated molten fluid materials, as known as a magma. There is the most important. The rock here is formed by the cooling of highly heated molten fluid materials, is known as a magma. There is a magma is a formation of igneous is a rock. The word is a magma is derived from a Greek word which means a depth. It is require a great quantity of the heat to the melt the rock under to the overlying pressure and then at the surface. We do not now there is exact a depth at which is the magma is from, but probably it is formed at a different depth not exceeding is the 40 kilometers. The molten rock is produced in increasing in a volume, which is responsible for causes or fractures or cracks in the crust. There is the most important here. The overlining is a pressure gate of weakened. Along this is an opening, thus the forcing out the magma through them. The otherwise it can escape due to the great overlining of pressure. There is the most important here, and where the magma is ejected to the surface is called lava. There is the most important lava. When the magma is ejected to the surface, it's called lava. Igneous rock are formed from a solidified molten magma below on the earth's surface. As there is a compress, the earth is a first crust and all other rock are derived from them, and this is called to the parents of the rock. It is a primary rock. There is the most important here. What is a primary rock? As the compress of the earth as a first crust and all other rock are derived from them, and these are called parents of the rock or primary rock. In a simple word, all the rock can be as described as a igneous origin, because at one time to another there was a erupted to the surface. A younger series of the igneous rock is still began formed. About 95% of the volume of outermost of 60 kilometers of the earth is composed of them, and these are the largely hard and massive because of their magnetic origins and are crystalline in appearance. There is the most important here. This is largely hardened and massive because there is a magnetic origin and crystallining is appearing. On the base of their mode of the occurrence is the igneous rock can be classified as a explosive or volcanic rock and intrusive rock. There is the most important here. There is a first here extrusive igneous rock are formed by cooling of lava on the earth surface. There is the most important. There are extrusive igneous rock are formed by cooling of lava on the earth surface. As a lava cool very rapidly on coming of the hot interior of the earth, the minerals is a crystal is a forming this rock are very fine. There is the most important, and this rock are called is volcanic rock. The volcanic rock there is the most important, and gabbro and the basalt are the very common examples. Such a rock, and this rock is formed is a volcanic area, and Dickens is a plateaus or regular soil in India is derived from lava. The next important here are intrusives of igneous rock are formed when the magma solidifies below their earth as a surface. The rate of cooling below the earth as a surface is very slow, which is give rise to the formation of large crystal in the rock. There is the most important area intrusive igneous rock, and the deep-seated intrusive rock are termed as a platonic rock. There is called to also is a platonic rock, and shallow depth intrusive rock are the term is a hypovessel. There is a granite and there is a dolerites are common example of intrusive rock. The granite and dolerites. There is a common example of the intrusive rock. From
and this is a point of view. Therefore, igneous rocks can is occurrence when there is a mode of formation. There is the most important. There is a igneous rocks can be occurrence with their mode of formation and be classified as a plutonic and hydrovaceous and volcanic rock masses. There is the most important is a 3 point. The head is a blocks of the coarse granitics and rock are found both in the Himalaya and Deccan plateaus. Deccan plateaus. There is the most important. The important here is a diagram of igneous rock here. There is the most important diagram. The craters, escapes rock, intensive rock, and dikes, magma, platonic rock, seals, and there is a baltoliths rock. There is the most important diagram. Show there is the igneous rock here. There is a figure is the most important and it is an illustrate of the magma or the cooling produce a rock of the different shape and size and depending on the space are available after it force itself into the crust. The common form of intrusives of igneous rock are both latex and silica and danks etc. The batholiths are hugs and there is a massive of solidified magma. They vary in the size, some as much as several 100 km across and thousands of kilometers of thick. And they generally form the core of the major mountain as shown in the diagram. And the regular domes as a shaped roof and sometimes appear on the surface after the erosion of millions of years. There is the most important and seal is the horizontal interventions of solidified magma between to the layer of pre-existing rock. And that is a similarly is a more or less vertical formation of few meter to the several kilometer in the length and form few centimeter in the hundreds of meter in the thickness. The basis of a chemical property here, igneous rock are classified into acidity and the basic rock. There is the most important acidic and basic rock, and these are formed as a result of solidification of acidic and basic lava. The acidic igneous rock are composed of 65% or more of silica, and these rocks are light color, hard and very strong. Granite is example on the acidic rock and basic igneous rock is contain less than 55% of silica. There is the most important is a 55% of silica. There is the most important acidic igneous rock are composed of 65% is more of silica and have more of iron and the magnesium. This rock is a dark color and big enough for the weatherings and gabbro and basalt and the doratal example of the basic rock. Igneous rocks are formed by the solidification of the molten materials called magma lava. There is the most important point here in the box. The igneous rocks are formed by solidification of the hot molten materials called magma या lava. And extrusives or igneous rock are formed by cooling of lava on the earth as a surface is a basalt and gabbro. That is the most important. And next year, intrusives igneous rock are formed by solidification of magma below their earth as a surface is a ग्रेनाइट्स। और अत्यंत महत्वपूर्ण आया है अग्नेय सेल। देखिए अग्नेय सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगर बात हम अग्नेय सेल की बात करते हैं तो एग्नियम्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के जो है इग्नेस शब्द से बना हुआ है। इग्नेस शब्द का अर्थ ही होता है अग्नि यानी फायर। इससे जो है इन सेलों की उत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है, अर्थात वह सेल जिनकी उत्पत्ति अग्नियों से हुआ है उन्हें अग्नेय सेल कहते हैं। तो देखा जाए तो अग्नेय सेल का जो उत्पत्ति होता है लावा से ही होता है, क्योंकि ये जो है अग्नि से ही बना हुआ होता है। अग्नेय सेल अति तप्त और चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं से बना हुआ होता है और ये ठंडे होकर जो है जमने से बनती है। भूगर्भ के जो है मैग्मा के बनने के निश्चित गहराई की हमें जानकारी अभी नहीं हुई है। यह संभवतः विभिन्न गहराई पर बनता है जो कि 40 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 40 किलोमीटर इसकी निर्धारित की गई है। शैलों के पिघलने से जो है आयतन में वृद्धि होती चली जाती है, जिसके कारण भूपट्टी जो है टूटती है या उसमें दरारें पड़ती है और इस खुले छिद्रों या मुखों के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में काफ़ी कमी आ जाती है और इससे ही मैग्मा जो होती है
बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा न हो तो ऊपर से पड़ने वाले अत्यधिक दाब मैग्मा को जो है बाहर जाने नहीं देगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसे मैग्मा की बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दबाव जब पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पड़ने वाला अत्यधिक दाब जो होगा मैग्मा को बाहर जाने से नहीं देगा, रोक देगा उसको। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा के रूप में हम जानते हैं, यानी हम उसको लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जो है भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो हम इसको अग्नेय शैल के निर्माण कहते हैं, यानी अग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की आरंभिक भूपट्टी अग्नेय शैलों से बनी हुई होती है। अन्य सभी शैलों का निर्माण जो होता है अग्नेय शैलों से ही की जाती है, और इसी कारण अग्नेय शैलों को जो है जनक या मूल शैल भी कहते हैं। यानी सभी जो शैलों का निर्माण होता है तो अग्नेय शैलों से ही होता है, इसलिए कई जगह पर तो इसको जनक भी कहा जाता है या मूल्याधार भी कहा जाता है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी जो है 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों का लगभग 95% है। यानी देखा जाए तो 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों की जो है लगभग 95% मानी गई है। अग्नेय शैलें सामान्यतः ठोस, भारी और विशालकाय और दावेदार भी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं निर्माण स्थल के आधार पर अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा यहाँ पर आया है हमारे समक्ष वो है बाह्य अग्नेय शैल। देखिए बाह्य अग्नेय शैल क्या होती है। देखा जाए तो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से ये बनती है, यानी बाह्य अग्नेय शैल होती है जो कि पहली हमारा है। ये जो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है, और इन शैलों की संरचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यानी लावा जो होती है, जो आग निकलती है पृथ्वी के धरातल से, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है, और लावा के जल ठंडा होने से इसमें छोटे आकार के रवे बने होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। और ग्रेवो और जो बेसाल्ट बाह्य अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं, और यह शैलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के दक्कन पठार की जो है रेगूर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी हुई होती है। यानी अगर आप रेगूर के बारे में जानते हो और काली मिट्टी के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है लावा अग्नेय शैलों से ही बनी होती है, बाह्य शैलों का कारण इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंतरिक अग्नेय शैलें की संरचना मैग्मा के जो है धरातल के नीचे जमने से होती है। यानी आंतरिक अग्नेय शैल जो होती है मैग्मा के धरातल के नीचे, जमीन से नीचे जो है जमने के कारण होती है, और धरातल के नीचे जो है मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी इसका जो प्रोसीजर है धीरे धीरे ठंडा होना, जबकि बाहरी अग्नेय शैल जो होती है डायरेक्ट ठंडा हो जाती है। अंत इन शैलों में जो है बड़ा आकार के रवे बन जाते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाले आंतरिक शैलों को जो है पतालीय अग्नेय शैल भी कहते हैं, यानी दूसरा इसका नाम जो है पतालीय अग्नेय शैल कहते हैं। अगर जो ग्रेनाइट और जो है डेलराइट आंतरिक अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं। हमने जब पृथ्वी के कोर सेक्शन का जो वर्णन देखा था तो उसमें ग्रेनाइट और डेलराइट जो है आंतरिक क्षेत्रों में ही पाया गया था। दक्कन पठार के हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट शैलों के विस्तृत जो है भूखंड देखा जा सकता है, और आंतरिक जो है अग्नेय शैलों की आकृति कई आकार की होती है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है वो है अग्नेय शैल की। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मैग्मा होती है नीचे होती है, और मैग्मा जो है किस प्रकार जो है बाहर निकल के बाहरी अग्नेय शैल का निर्माण करती है, और शील होती है आंतरिक अग्नेय शैल का जो है निर्माण कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये साधारण अगर आपको लगे डायग्राम साधारण नहीं दिखेगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यदि हम इस चित्र का अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भूपट्टी में मैग्मा के ठंडा होने पर विभिन्न आकृतियों में अग्नेय शैल बनती है, और ये आकृतियां शैलों में प्राप्त स्थान तथा मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती है। बैथोलिथ, सील और जो है डाइग इसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं बैथोलिथ बड़े आंतरिक अग्नेय चट्टानी पिंड है, और इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है, और ये विश्व के बड़े पर्वत समूहों को जो है स्थूल कोड होते हैं। लाखों वर्षों के अपरदन के कारण कभी कभी इनकी जो है असामान्य गुंबदनुमा छत जो है धरातल पर दिखाई देने लगती है। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतरण सतहों के रूप में जमने के स्वरूप को भी सील कहते हैं। यानी देखा जाए तो पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतर तहों के रूप में जमने के रूप को भी सील कहते हैं।
डायक शैलों के बीच मैग्मा का जो है लंबवत जमाव होता है और इसकी लंबाई कुछ तक मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक और चौड़ाई कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर, चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। रासायनिक गुणों के आधार पर जो अग्नि शैलों के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो होते हैं अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय शैल। यानी अम्लीय और क्षारीय शैल के रूप में इसको जो है प्रभावित किया जा सकता है। ये क्रमशः अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनती है। अम्लीय अग्नि शैलों की जो है सिलिका की मात्रा जो है 65% होती है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है अम्लीय अग्नि शैलों में सिलिका की जो मात्रा होती है 65% होती है और इसका रंग बहुत ही हल्का होता है और ये कठोर मजबूत शैल होते हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की शैल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी अम्लीय अग्नि शैल की जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, जो कि काफ़ी सिलिका जो होती है 65% के रूप में होती है। क्षारीय अग्नि शैलों में सिलिका की मात्रा जो है अम्लीय शैल से बहुत कम पाई जाती है और इसमें सिलिका की मात्रा जो है 55% से कम होती है। यानी 55 से देखा जाए तो कम ही होती है। शैली जो ऐसी शैलियों में लोहों की जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इसका रंग गहरा और काला होता है और इस पर जो है ऋतु अपक्षय का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रेबो, वेस्लाट और डोलोराइट क्षारीय शैलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस बॉक्स में बहुत सी बातें जो है आपके समझ के लिए ज़रूरी है। कहते हैं अग्नि शैल तप्त द्रवित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी जो मैग्मा होता है वो काफ़ी गर्म होती है लेकिन फिर भी ये ठंडा होने के बाद जो लावा ठंडा होती है तो अग्नि शैल की तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है और लावा को ठंडा होकर जमने से ये बनती है। बाहरी अग्नि शैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी बाहरी अग्नि शैल के धरातल पर लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है और इसमें जो है बेसलॉट और ग्रेबो इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अग्नि शैल धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनती है और ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।